Students, can you tell me what exactly in the last lecture? Anyone? Why? What's the reason, Josh? What's the reason, Josh? What happened? Oh, is she fine? Is mom fine? Not much serious now? Oh, Joy's feeding. Fine, take care. Please take care. Please take care. Take care. Please take care. Okay, the signs are somewhat. Okay, please take care. But everything will be fine. Don't worry about this. Lectures will be recorded and will be posted. And whenever you can, okay, speak to Gyanendra sir about it. Okay, we can have a short session of half an hour, 45 minutes, one-to-one. You go to the recorded lectures. अगर वहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है तो just you can sit with me for half an hour, 45 minutes anytime. You can speak to Gyanendra sir. He'll arrange it for it. Okay, and we'll sit. Don't worry about that. Tell your mom also about that. Okay, from my end, I'll try my best. Okay. We did derivation of electric dipole on the axis. No, did we do Ghazafar? Yes, yes, I'll send it. Josh, I'll be giving the recorded lectures. I'll be sending the recorded lectures. Sorry, don't worry. Ghazafar, we did electric field along the axis, electric field intensity along the axis. Okay, so I said it that E axial is equal to twice E equatorial. Is it so? Yes, sir. Okay, fine. Okay. Okay, students. Did I do formula for potential at a point due to the charges? Formula for potential at a point and work done. Did I do that? Potential at a point to bring a charge from infinity to a point within the field. I did electric field intensity, students. I did force. Okay, these two concepts are made it very clear. Okay, I told you principle of electric fields we consider. Principle of superposition due to electric field and due to force also made it very clear to you all. And we did certain short examples also, problems also in the last lecture. Isn't it? Arey, hi, Anata bolo, I want to see it. Okay, somebody has replied. Acha, electric field at equator, I told you to try it out. Did I do it? Electric field intensity at the equator. Did I do it, students, or no? Acha, yeah, I remember. I did the axis part of it. Equator, I didn't do it. Okay, we'll go for that. And then we'll go for potential. Okay. Students, now please pay attention. Okay. Okay, students, now please pay attention. Now we are trying to speak about electric field intensity. Consider at a distance small r from
the center of an electric dipole along the equator. Since we need to go for electric field intensity at a distance. Electric field intensity at a distance r from the center of an electric dipole along the equator. Okay, we are trying to go for this part of it. Now, please pay attention for the diagram. Okay, how many of you have tried out for this? How many of you have done this? Anybody has done this derivation? Anyone could do it? Okay, Chirag could do it. Tej can do it. What about the rest of the students? Rest of the students? Josh, what about you? Gazafar, what about you? Nedeep, what about you? Sir, I couldn't do this. Dhruv, Harshita, Josheshai, Joanna, hope that you are attending lectures in consistency. Kunj, what about you, Kunj? Kunj, तुमने इसका डेरिवेशन किया कि नहीं किया? आंसर दो अभी मुझे फास्ट. कुंज, अनम्यूट करो अपने आप को. कुंज अनम्यूट नहीं कर रहा है. सलमान, what about you? Tanya, Yes, sir. have you done the derivation for equator? So you had done once for the test when we had the test. Okay, fine. Okay, students, let's go for the electric field intensity at the equator for a given dipole. Okay, कुंज अभी तक तेरा आंसर नहीं मिला. 3:30 को देख रहा हूँ मैं तेरे को वापस. Okay, now please pay attention, students. ये है a line passing through the center of the dipole. Students, we consider it the axis. इसको हम बोलते हैं axis, students. Okay. और इसी का अगर मैं perpendicular bisector लेता हूँ, students, passing through the center of the dipole, so this I'll call as an equator. Okay, this I'll call it as an equator. अभी हमें क्या find out करना है, students? We have to find out electric field intensity at a distance r from the center of an electric dipole. ये है dipole. Two poles equal in magnitude and at a certain distance apart from each other. Okay, finite distance we consider is results in formation of a dipole we consider. Electric dipole moment का formula सबको पता होना चाहिए. Can anybody give me the formula for electric dipole moment? Formula for electric dipole moment, students? Q into 2L. Very good. Q into 2L. Okay, guys, sir, very good. Q into 2L. And direction कहाँ से कहाँ होता है? What's the direction of electric dipole moment? Negative to positive. Very good. It's actually from negative to positive. और इसका unit क्या होगा? Coulomb meter. That's the unit. That's what a student should keep in mind. Okay, so this is a dipole, and we have to find out from the center of electric dipole along the equator. Let me consider as a, suppose if I say I am taking a point P over here. Okay, and I want to find out electric dipole moment for a distance r from the center of the dipole at a point P along the equator. So now to get electric field intensity, what is the formula for electric field intensity? Anyone? What's the formula? What's the magnitude? How to find out magnitude of electric field intensity, students? Absolutely, they just given the answer. Okay, E is equal to what? C Q by R we consider. Okay, तो ये जो तेज तूने जो Q लिखा था फॉर्मूला में अभी तुमने पोस्ट किया तो वो कौन सा ये सोर्स है या इफेक्ट है? The formula what you said it right now, you posted right now. वहां पे तुमने Q जो लिखा था वो सोर्स है या इफेक्ट है? एक ही Q बताया आपने. गजफर कहाँ से इफेक्ट होगा गजफर? कुंज आंसर दे रहा है सोर्स. Yes, capital Q. Aggregate and if you happen to see students, if you happen to see, Tej, its denominator also has to be taken care of. Okay. So जो न्यूमरेटर में होगा वो सोर्स होगा, absolutely correct, और डिनोमिनेटर में r square आएगा students.
ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर इजी वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट, मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू F बाई क्यू, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, ये तुम्हारा इफेक्ट वाला है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स का फॉर्मूला का कूलम्स कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, तो फोर्स का फॉर्मूला है इनटू Q, ये इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर E, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K फॉर मीडियम, सोर्स अपॉन r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। एग्रीड? नाउ इफ यू हैपन टू सी, यस ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखोगे तो ये क्या होगा, न्यूटन कोलोमिनस होगा, या वी कैन राइट ऑन इन टर्म्स ऑफ वोल्ट मीटर, ये इसका यूज होगा। एंड स्टूडेंट्स, जब भी हम डेरिवेशन करते हैं ना स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन, व्हेनेवर यू गो फॉर डेरिवेशन, हमें ये दो फॉर्मूलाज का हमें जरूरत पड़ेगी। The two formulas I'm going to utilize in my mathematical derivation. That's one thing you have to take care. यानी before going for the derivation, a student should know these two mathematical relations. दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम वेयर टू वेयर? Yes, anybody? What's the direction of electric field intensity? Positive to negative. Absolutely correct. Positive to negative is considered. Is that clear? Okay. Now, students, if in case if I happen to speak about how to go about the part of the derivation. So, at point P, students, if you see, I want to find out the resultant electric field intensity due to a dipole. Dipole का मतलब एक positive negative. तो हम assume क्या करेंगे? अगर तुम्हें ध्यान से मालूम होगा, एक्सिस के लिए what did I tell you? मैंने पॉइंट P यहाँ पे लिया था और हम लोग ने assume किया था कि पॉइंट P पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, 1 आई कैन कंसिडर, और वहां पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया था, अगर तुम्हें याद हो तो 6 days ago, और यहाँ पे हमने एक्सिस पे लिया था। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो देयर वर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाज एक्टिंग एट पॉइंट P ड्यू टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। फिर हमने उसका रिजल्टेंट निकाला था एंड वी गॉट द फॉर्मूला फॉर E along the axis, जहाँ पे तुम्हारा डिनोमिनेटर आ रहा था r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3/2 स्टूडेंट्स। तो तुम्हारा डिनोमिनेटर आ रहा था और ऊपर एक स्मॉल आर आ रहा था, लेकिन वही हम शॉर्ट डाइपोल के लिए चले गए थे। अगर मैं शॉर्ट डाइपोल के लिए इफ आई हैव टू कंसीडर इन दिस केस, तो मेरा आंसर क्या आता था, ट्वाइस पी, डिनोमिनेटर में वाज r क्यूब भी कंसीडर कांस्टेंट था। नाउ लेट अस गो फॉर इक्वेटर, ध्यान से सुनना। तो हम अभी यहाँ पे भी क्या अज्यूम करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हम अज्यूम करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा है एट पॉइंट P, डिस्टेंस इज r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यू विल से सर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा सर, ये इसको रिपेल कराएगा, क्योंकि ये सोर्स है और इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा स्टूडेंट्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। तो ये क्या है सर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेट मी टेक दिस पॉजिटिव चार्ज एज चार्ज 1, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 1 स्टूडेंट्स। ओके, ये है फोर्स ऑफ रिपल्शन आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, आपने इसको सोर्स बोला हुआ है, तो इसको मैं लेता हूँ चार्ज 2, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, आई गेटिंग इट। तो वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, एग्रीड। और इसको मैं लिखूंगा क्या, E2। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या क्या मैग्नीट्यूड ऑफ E1, ध्यान से सुनना, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 स्टूडेंट्स? क्या मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2? Yes or no? Yes. Sun is saying it here. What about others? Absolutely correct. Yes, Chirag. यानी देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्यों? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला तुम्हारे सामने, तो देखो ध्यान से देखना, फॉर्मूला को कंपेयर करो स्टूडेंट्स, E1 E2 सेम है तो ये तो कांस्टेंट आएगा दोनों में। अच्छा, फिर हम चार्ज की जाते हैं सोर्स के लिए, सर पॉजिटिव चार्ज यानी आपने डाइपोल बोला, तो डाइपोल में भी ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो सर ये भी सेम है। डिस्टेंस क्या होगा सर, ये r है, ध्यान से सुना स्टूडेंट, ये r है, अगर आप इसको L लेते हो तो भाई थ्योरम ऑफ पाइथागोरस के ना से ये हो जाएगा मेरा r² + l²।
तो वो भी वहां पे होगा सर। उसका मतलब सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम हो गया। यस, यानी ये कौन सा एंगल हुआ सर? इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हम करेंगे। ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर E1 is equal to E2? E1 is equal to E2 if I happen to write out, students. My answer will be equal to what? 1 upon 4 pi epsilon 0 K agreed Q upon what is actually formula? R square. यानी डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच में सर? इसको स्क्वायर करना है, यहाँ पे भी डिस्टेंस अगर स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो क्या होगा? रूट चला जाएगा, बिकॉज रूट का मतलब रेज़ टू पावर ऑफ हाफ। तो स्टूडेंट्स कैन आई राइट सिंपली R square plus L square? क्या ये क्लियर हुआ सबको? Is this Yes, magnitude sir. of electric field intensity at a point P due to unit positive charge and a unit negative charge? It's equivalent magnitude we consider, and that's the mathematical relation I've given it to you. Formula I'm using is this. दोनों का सोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और यहाँ पे चार्ज भी R है। लेट मी टेक दिस, द चार्ज इज आई पुट इट एज Q इन दैट केस। मैं ये Q लिख देता हूँ, ओके। और ये तुम्हारा आंसर है। यूनिट क्या होगा? न्यूटन कूलम इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स। नाउ यू विल सी सर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट मींस स्टूडेंट्स बोथ आर वेक्टर्स। सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, direction of electric field intensity due to negative charge. For negative charge, it will move towards the charge. For positive, will go away from the charge. ये ध्यान में रखना। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी लेंथ ऑफ द आरो सेम। Now, if I want to get the resultant, तो क्या करोगे सर? ऐसा करते हैं ना, रिजल्टेंट यानी दोनों तो वेक्टर्स है, या तो आप रेड इंक को शिफ्ट करो या तो ब्लू इंक को शिफ्ट कर दो पैरेलल। तो अगर मैं रेड इंक को शिफ्ट करता हूँ पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ, okay, so can I say this is my E1? So now can I say tail head, tail head? Where is my resultant will be? So resultant will be tail of the first vector to the head of the second vector. So can I say this becomes my resultant? And this is your E resultant we consider. Is this clear, students, using triangle law? So can I say my using E resultant in vector form will be equal to what? E1 plus E2 by using triangle law vector addition. ये मेरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ। ध्यान देखो स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से ये चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी? इस डायरेक्शन में। फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा। फिर हमें फाइंड आउट करना है इसका मैग्नीट्यूड। ये रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू ऑल? स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर विद ऑल ऑफ यू ऑल? Now if I happen to go for how to go further at sir, अगर आपको रिजल्टेंट का चाहिए तो can I resolve this E1 into two components? Why not? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर ये थीटा है तो इसको भी मैं थीटा ले लूं, है ना? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे ये दोनों। Can I resolve E1 into two components? हाँ सर, एक होगा E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E1 cos थीटा, ये हो जाएगा, और E1 sin थीटा ये हो जाएगा। वर्टिकल भी E1 sin थीटा, E1 cos थीटा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। वैसे ही कैन आई रिजॉल्व E2? व्हाई नॉट? सर ये एंगल थीटा है आपका, तो ऑल्टरनेट एंगल्स में ये भी थीटा हो जाएगा। देखो Z फॉर्म कर रहा है ऑल्टरनेट एंगल। कैन आई रिजॉल्व दिस E2 इनटू टू कंपोनेंट्स? व्हाई नॉट? सर एक यहाँ पे जाएगा जो होगा आपका E2 cos थीटा और नीचे की तरफ होगा E2 sin थीटा। अभी मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, एंगल सेम है, एंगल सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड इज आल्सो सेम। तो व्हाट अबाउट E1 sin थीटा? E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, आर दीज टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in direction, acting at point P on a unit positive charge? Are these two vertical components equal in magnitude, opposite in direction? तो क्या करोगे तुम? इसको रखोगे या कैंसिल आउट कर दोगे? रिजल्टेंट इनकी वजह से क्या होगा? इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो ये हमें रूल आउट करना है, ये दोनों को हम कैंसिल कर लेंगे। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Is this much clear with everybody? Please students, those who are getting it, do reply. Those who are not getting it, do raise your hand or do unmute yourself and ask. I'm going to repeat it again. But don't take things just for the sake of completing it. Don't sit into the lectures just for the sake of sitting because parents are there at home or somebody is monitoring at home. Don't sit in that manner.
ओके तो ये तुम्हारा कैंसिल हो गया। अभी तुम्हारा रिजल्टेंट क्या होगा सर? रिजल्टेंट अगर मैं मैग्नीट्यूड में लेता हूँ तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में क्या होगा सर? दोनों का एडिशन होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अरे हाँ सर, ये तो अभी ऐड होगा। अभी मुझे बताओ E1 और E2 का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कैन आई से माय रिजल्टेंट स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू व्हाट? टू E1 cos थीटा में लिखते हैं तो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Can I proceed further right from here? Okay. Now suppose if I happen to consider what is E1? What is E1? How much is E1 we know it? So we know E1 और E2 का magnitude तुम्हें पता है। Cos theta क्या है? What is cos theta in the right angle triangle? So cos theta will be adjacent side upon hypotenuse। देखो ये adjacent है, भले ये triangle लो या ये triangle लो, कोई problem नहीं है। Cos theta क्या होगा? Adjacent upon hypotenuse। तो adjacent L है, hypotenuse क्या होगा? R square plus L square root है, तो can I put raised to the power of half? Agreed? So I need to find out E resultant. तो E resultant क्या हो जाएगा? So it will be twice E1 का फॉर्मूला सर आपके सामने है, आपने लिख दिया था, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यूब, सोर्स है, अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी रूट चला गया था सर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एग्रीड? इनटू cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा क्या है? L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज़ टू द पावर ऑफ हाफ। Is this clear students? क्या यहाँ तक क्लियर है? कैन यू सी द बोर्ड प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स? इज द बोर्ड एंड इज द ऑडियो एंड वीडियो फाइन विद ऑल ऑफ यू ऑल? Yes, sir. एग्रीड? ये तुम्हारा आ गया। अभी देखो ई रिजल्टेंट मैंने ले लिया, इस पे ई रिजल्टेंट, तो ये होगा ट्वाइस, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, ये होगा सॉरी क्यूब में लिखूंगा, 12 को साथ में लिखूंगा मैं, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पर मीडियम। दिस इज a raised to m into a raised to n स्टूडेंट्स, a raised to m into a raised to n, a raised to m plus n, so 1 plus हाफ कितना हो जाएगा? 3/2। क्या ये क्लियर हुआ? And this is your formula for resultant electrical intensity at a point P perpendicular to the dipole along the equator and distance small r, and this answer will be Newton Coulomb inverse। यानी स्टूडेंट्स जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो और वहां पे तुमने एक फाइनाइट डिस्टेंस स्मॉल आर दिया है, डाइपोल का भी लेंथ दिया हुआ है, तो तुम्हारा ये रिलेशन यूज होगा। Q का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, जो सेम ही है। 12 का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर वैक्यूम है तो K 1 हो जाएगा। प्लीज दिस K स्टैंड्स फॉर व्हाट? आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज K स्टैंड्स फॉर? What does K stands for, students? Fast. What does K stands for? See, forgot. See, forgot. Not in touch. The chapter is not in touch. Students, this is must or lose. The time when you actually do your electrostatics with Hemant sir or Somto, whatever it is, you should not lag behind. Dielectric, of course, Tej, absolutely correct. It's an insulating we consider. Are you getting it? Very good, Rishi. Very good, Rishi Dave. Very good, Rishi. Nice. So early you are entering it. And now Vaishnavi, very good. You are entering right now. Sir, So, I had some network issues, so I was not able to join, sir. okay. And what about Vaishnavi? What about you? Why you are so late? Okay, even she also has a network issue. Fine. Okay, so सब ध्यान से देखो। तो ये तुम्हारा 4 पाई, अगर सपोज मैंने कुछ मटेरियल दिया तो ये डाल देना। अगर सपोज मैंने वाटर के हिसाब से लिया होगा तो 80 या 81, ये फॉर वाटर। आस्कर तो सेल्स पर रेशो 3/2, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। और ये क्या है? ये कहाँ पे? ई रिजल्टेंट कहाँ पे है? दैट इज इक्वेटर। एग्रीड? अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज Q into 12? Students, what is Q into 12? Can I say P? So can I write on this part? Can I write on this part as P, and that's electric dipole?
So now can I write down my formula for electric field intensity along the equator is equal to what? P upon 4 pi epsilon naught k for a medium r square plus l square raised to the power of 3/2. और ये फॉर्मूला किसमें हुआ सर? ये हुआ फॉर्मूला मैग्नीट्यूड में हो गया। अगर मैं पूछूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स इज इट अ स्केलर और वेक्टर? ये बताओ क्या ये स्केलर और वेक्टर है? क्या आंसर होगा? व्हाट इज दिस? इज इट अ स्केलर और वेक्टर? यस स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स पेज वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो उसको डायरेक्शन होगा। मुझे ये बताओ स्टूडेंट, यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस तरफ है? बताओ रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस तरफ है? इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट distance small r from the center of the dipole, is this electric field intensity, is it in the direction of electric dipole moment or opposite to the electric dipole moment? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कौन सा डायरेक्शन? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये देखो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। इज इट गोइंग पैरेलल और एंटी पैरेलल? एब्सोल्युटली करेक्ट है चिराग, बोथ ऑफ देम हैव गिवन करेक्ट आंसर। दोनों एंटी पैरेलल है। तो अगर ये इक्वेशन मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? फिर आप डाल दो एरो और यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल दो। समझ में आया नहीं? ये इक्वेशन को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इजीली, अरे हाँ सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटर पे है, ये पी का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ सर? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। हाँ सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने बोला था नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और ये इस तरफ गया। वही एक्सिस में क्या था? एक्सिस का फॉर्मूला क्या था? एनीबॉडी रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर ई अराउंड द एक्सिस? इट्स 2p अपॉन 4 pi epsilon naught k for a medium. Agreed? What exactly this was? R square minus L square. Agreed? What exactly was getting it? What was getting it? Raised to the power of what I'm getting it? Anybody? 2. raised to the power of क्या आ रहा था? 2. और न्यूमरेटर में क्या आ रहा था? न्यूमरेटर में क्या आ रहा था? Why putting question mark Tej? Into RL consider. I get it? यानी यहाँ पे देखो ये साइन पॉजिटिव आ रहा था, उसका मतलब ये एक्सिस डाइपोल और ये दोनों एक ही डायरेक्शन पे थे। I get it? That means electric field along the axis is considered in the direction. ये तुम्हारा रिजल्टेंट इस तरफ जा रहा था। I get it? और डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन ये किसके लिए स्टूडेंट्स? ये जब भी पॉइंट P एट अ सर्टेन फाइनाइट डिस्टेंस। इसके बाद में हम लोग ने इसका शॉर्ट डाइपोल लिया था, तो याद आ रहा है? शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या था? सर आपने इसको L को निगलेक्ट कर दिया बिकॉज द डाइपोल वाज वेरी स्मॉल। अगर मैं L को निगलेक्ट कर दूं, ध्यान से देखना, मैं L को निगलेक्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा? R⁴ आ जाता क्योंकि स्क्वायर बार था। R⁴ और R कैंसिल हो जाता तो मुझे क्या मिला नीचे? R³ मिला था। दैट वाज अ शॉर्ट डाइपोल। तो एग्जैक्टली सेम वे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम निकालते हैं। किसके लिए? E along the equator for a short dipole. Suppose that now somebody asks you for a short dipole, what exactly it means? For short dipole. उसका मतलब क्या? What exactly it means for short dipole students? For short dipole you consider that point P, ध्यान से सुनना, point P is very far. यानी ये सोचो कि point P की जगह पे तुम खड़े हो, तुम पहले एक फाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो तुम्हें डाइपोल बहुत ही डिस्टिंक्टली दिख रहे थे, दोनों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस था एंड दैट वाज कंसीडर। लेकिन अगर मैंने पॉइंट P को बहुत फार ले लिया तो कैन आई से द टू डाइपोल्स फॉर एन ऑब्जर्वर स्टेशन ओवर देयर, दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना? दे विल बी वेरी क्लोज, दे विल बी सो क्लोज सच दैट दिस L बिकम्स वेरी स्मॉल। अगर L हो गया वेरी स्मॉल तो L स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? फॉर शॉर्ट डाइपोल हम क्या करेंगे सर? निगलेक्ट L स्क्वायर। अगर मैंने निगलेक्ट L स्क्वायर कर दिया तो व्हाट्स माय आंसर फॉर E? तो E विल, अभी मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, नॉट इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या होगा फिर? P अपॉन व्हाट एग्जैक्टली कंसीडर? 4 pi epsilon naught k for a medium. Absolutely correct. L को निगलेक्ट कर दो तो ये क्या होगा? R² raised to the power of 3/2. Students, R² raised to the power of 3/2 20 कैंसिल, क्या आ जाएगा? R³ यानी स्टूडेंट्स अगर तुम ध्यान से तुमने सुना होगा एक्सिस के लिए भी हमारा नीचे R³ आ रहा था शॉर्ट डाइपोल, और इक्वेटर के लिए भी नीचे शॉर्ट डाइपोल के लिए R³ आ रहा है। लेकिन फर्क ये है
कि वहां पे न्यूमरेटर में 2p आ रहा था और यहाँ पे सिर्फ p आ रहा है। तो ये हुआ फॉर्मूला E along the equator, लेकिन किसके लिए है? फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ सबको? So now Yes, can you sir. give me a relation? Can you give a relation between E at the equator and E along the axis? So for a short dipole, okay, this is simply for short dipole. MCQs इसके ऊपर बहुत पूछते हैं. For short dipole students, ये ध्यान में रखना. E along the axis is always twice E along the equator. E along the axis is twice E equatorial. इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं. समझ में आ रहा है? यानी ई एक्सिस के लिए क्या होगा? डबल आ जाएगा, ई इक्वेटर इज ओनली पी. दूसरी बात, डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बट ई अलोंग द इक्वेटर इज एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट. इज दिस क्लियर विद एवरीबॉडी? क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, shall I erase this? You want to copy it down? Okay, done. Students, when I'm erasing, इसका मतलब somebody has posted कि sir it's noted or it's done. Okay. अगर तुम्हें लिखना हो, तुम्हें नहीं है तो you unmute yourself and tell me about it. Okay. And people who posted, if in case my vision goes over there and if I see it is done or noted, then certainly I'll start erasing it. Okay, students. All the students, okay. Joanna, what happened? You're going out and you're coming in. Okay, students, listen carefully, students, okay. The question is this, please. The question is, the electric field, this is a good question, students, based on to flux and electric field, okay? The electric field in a region, listen carefully, students, okay? I'll put on the data. The electric field in a region is given by, so E bar is given by 5 K cap Newton Coulomb inverse. 5 K cap Newton Coulomb inverse. Calculate the electric flux. Calculate the electric flux through a square. Through a square of side 10 centimeter. Of side.
10 centimeter in following cases. First case, the square is along xy plane. Square is along xy plane. Second, square is along xz plane. Square is along xz plane, students. And the third one is the normal to the square makes an angle of 45 degrees with the z-axis. Normal to the square. Normal to the square makes an angle. Makes angle of 45 degrees with z-axis. Hope the question is very, very clear to all of you all. I repeat once again. The electric field vector are given in form of a vector form. The electric field vector acting in a region is 5k cap Newton Coulomb inverse. Find out the electric flux through a square of side length 10 centimeter in 3 cases. The first case, the square is along xy plane. The square is along xz plane. Okay, we consider, means I need to find electric field intensity for a square along the plane along xy plane, square along the xz plane, and normal to the square making an angle of 45 degrees to the z axis. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? All of you all students? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा शांति से ध्यान से करना and try to give me a correct answer in the first attempt. थोड़ा सोच के करो. Those who know it, you can post your answers, okay? Shweta, come on, start working onto it. Shweta Khare. And please post all the 3 answers together, please, not one by one. A student who does do all 3 cases and tries putting 1, 2, 3 as your final answer. Is anybody?
Yes, come on, anyone? So much time. And let's put forward the answer. Yes, Sanya is correct. Sanya, can you solve the third one in decimals if possible? Sage has got the first answer and the second answer correct. Sanya has got all three answers. I just want to cross check the third answer. Absolutely. And Sanya has given the formula also. Okay, I've got two students answering for it. Let us discuss. Students, now listen carefully. Can anybody, Sanya or someone who answer Chirag, can anybody who wants to speak it out, who wants to answer? Sorry, either Tej or Sanya. Absolutely correct, Sanya. Yes, anyone who wants to answer? Yeah, they're posting Sir, the I answer. used the formula Yeah, which is the formula you used it? EA cos theta. Okay, that is your flux is equal to EA cos theta you're using it, isn't it? Yes, sir. Okay, fine. Now please pay attention, students. What exactly the question given to you? Electrical intensity is 5 K cap. Yani, suppose if you try to go for the diagram, students, please everybody listen carefully. ये तुम्हारा x axis है, ये तुम्हारा y axis अगर मैं लेता हूँ, तो ये तुम्हारा z axis में लेता हूँ, positive, z we consider. ये है 0,0,0. Agreed? Now, if I want to select the plane, students, फिर लोग को बोलिए, ये कौन सा plane हो जाएगा? फिर ये होगा xy plane. Agreed? अगर मैं ये plane को select करता हूँ, students, what exactly this plane है? ये कौन सा प्लेन होगा मेरा? ये मेरा होगा YZ प्लेन. और ये जो प्लेन मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये कौन सा होगा? तो ये होगा XZ. Are these planes clear with you? Now look at the problem. उन्होंने बोला है that electric field, ध्यान से सुनना, electric field intensity is 5 K cap. यानी students, electric field intensity is in this direction. This is the direction of electric field intensity, and this is plus K cap. Students, this is in plus. ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव z axis. और ये कैसे पता चलेगा कि यही डायरेक्शन पॉजिटिव है? कीप योर लेफ्ट हैंड, यू मस्ट हैव डन इन वेक्टर्स, सो मच ऑफ फिजिक्स यू हैव लर्नड इट. ये तुम्हारा देखो x y and z. अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ 3 डायमेंशन, ये पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, पॉजिटिव z. तो पॉजिटिव z स्टूडेंट्स इज कमिंग इनटू योर आई, कमिंग इनटू योर आई. तो ये तुम्हारा पॉजिटिव z होगा. तो यहाँ पे तुम बता सकते हो सर ये मेरा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का वेक्टर ये डायरेक्शन है, क्योंकि ये k कैप के हिसाब से आ रहा है. अभी उन्होंने पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड L जिसका 10 सेंटीमीटर दिया है. कैन आई कन्वर्ट 10 सेंटीमीटर टू मीटर? यस सर. इंटू 10⁻², यानी 10⁻1 मीटर हो जाएगा, कन्वर्ट टू मीटर. कौन सा केस? सबसे पहला केस, स्क्वायर इज अलोंग XY प्लेन. अभी ध्यान से देखो, फील्ड जा रही है इस तरफ, स्क्वायर XY प्लेन ये वाला प्लेन है. यानी स्टूडेंट्स कहना है इसे ध्यान से सुना, ये मेरा शेडेड रीजन हो जाएगा, ये मेरा प्लेन सरफेस हो जाएगा. मुझे बताओ स्टूडेंट्स इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? सर इसका एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मल टू द सरफेस. करेंगे नॉर्मल. अभी मुझे बताओ ये जो नॉर्मल जा रहा है स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्मल जाएगा, कैन आई से विल दिस नॉर्मल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? विल दे टू पैरेलल, विल दे बी टू पैरेलल टू ईच अदर? स्टूडेंट्स ये देखो, ये नॉर्मल पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो पेन देखो, पेन को देखो नॉर्मल, और ये ई को देखो. आई गेटिंग इट? So can you tell me what is the angle formed between E and the area vector for this student? The angle E and the area vector for this. Will it be 0 degree? Will it be 90 degree or will it be 180 degree? Can you tell me that? Of course, Kunj, 0. तो यहाँ पे तुम्हारा flux क्या होगा? So the flux we consider it. I'm getting it? Flux. Okay, along XY will be maximum since theta will be 0 and cos of 0 will be 1. So what's my formula? Simply E into A.
How much is the electric field intensity is given to me? Sir, it's 5 दिया है. Into area क्या होगा? Face area we consider. Agreed. And what is the face area we consider? Side square. Okay. So that is E into L square हो जाएगा. So 10 raised to minus 1 the whole square. So what's my answer? 5 into 10 raised to minus 2. What's the unit of flux? Friends, what's the unit of flux? Voltmeter, Newton per kilometer square. What's the unit of flux? Voltmeter. Okay, fine. Now see, I don't want in voltmeter. I want in Newton. Friends, I want in Newton. Don't give me the answer which is given in the text. I want to answer in Newton. तो कैसे करोगे? Newton per kilometer square. F by Q. और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो मेरा आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स और वोल्ट मीटर. एनी वन इज फाइन विद इट. अगर क्या करें, ये जबरदस्ती नहीं कि तुम्हें यही यूनिट लिखना है. स्टूडेंट ये भी तुम लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. इज द फर्स्ट पार्ट क्लियर विद एवरीवन? ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ, ये तुम्हारा आंसर हुआ. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस, बोथ आर इक्वल. एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ नेक्स्ट वन, स्क्वायर इज अलोंग एक्जेक्ट प्लेन. एक्जेक्ट प्लेन में कौन सा होता है? ये वाला हुआ. और देखो यहाँ पे, देखो अगर ये प्लेन लेता हूँ स्टूडेंट, तो इसका नॉर्मल क्या होता है? इसका नॉर्मल ये ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर. ये देखो ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर सरफेस. अभी देखो ये वेक्टर को एरिया वेक्टर, अगर मैं ये एरिया वेक्टर को शिफ्ट करता हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर को शिफ्ट करता हूँ विद इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द एंगल फॉर्म? व्हाट विल द एंगल फॉर्म? ये एरिया वेक्टर नॉर्मल, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस स्टूडेंट्स. यानी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एरिया वेक्टर को अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा. थीटा 90 हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 बन जाएगा 0. therefore flux will be minimum and that will be 0 voltmeter. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Students, is it clear? Yes, sir. Agree it? Now the last one. Normal to the square making an angle of 45 degrees with the z-axis. Normal to the square making an angle of 45 degrees with the z-axis. If I say normal to the square and making it an angle of 45 degrees with the z-axis, that means, sir, it can be in different planes, but it's forming an angle of z-axis 45 degrees with the z-axis. तो वहां पे तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? सर यहाँ पे सिंपली हमारा फॉर्मूला होगा flux is equal to E A cos theta, and theta will be equal to how much? 45 degrees. So now if I solve this, what exactly you consider? So E is equal to 5, L square will be equal to 10 raised to minus 2, cos of 45 is 1 by root 2. Agreed? What's my answer will be? It's 5 upon root 2. So can I say root 2 by 2 means, can I say simply 2.5 into 1.414? इसको multiply करो. That many into 10 raised to minus 2 voltmeter. Normal to the square making an angle of 45 degrees to the z-axis. That means it's forming an angle of. Answer like now, normal to the square, and it can be either in this direction, normal to the square. Agreed? But making an angle of what? 45 degrees. Either over here or in this direction or in this direction, forming an angle of 45 degrees with the electric field vector we consider. So your answer will be 2.5 into 1.414, which is you'll be getting as an answer at 3.5 around. Is this clear with everyone? Yes, sir. Yes, sir. This. और देखो तुम्हें ये कैलकुलेशन को फास्ट करना है ना स्टूडेंट्स, देखो एक ऐसा है 1/√2 की वैल्यू ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. ये तो फिर मैंने लिया है इन दिस मैनर, लेकिन जब भी तुम आगे जाके सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब भी तुम चैप्टर करोगे ना, तो ये 1/√2 की वैल्यू तुम रट्टा मार लोगे, क्योंकि इतने एमसीक्यूज ये स्टेज 0.707 इतने एमसीक्यूज तुम कर लोगे इसके साथ में, तो तुम्हारा आंसर 0.7. यानी तुम्हें क्या करना है? 5 into 0.707 1/√2. तो 7 5 are 35. ओके, 7 5 are 35 होगा, 3.5 आएगा तुम्हारा आंसर. एग्रीड? तो प्लीज 1/√2 को 0.707 ध्यान में रखना स्टूडेंट्स.
Can I erase this one? Priya, are you getting it? Yes, yes, Anna. Even Newton Coulomb is also an SI. So, but during exams, which unit should we use? Sorry? So, in exams, which unit should we give a final answer? You can give, see one thing, when I speak about in terms of it, you can give your final answer in terms of depending on how exactly you have given for electric field. They have given Newton Coulomb, na? So try to go for that more precisely. Okay, sir. Agreed? अगर ये Yes, तुम्हें बोर्ड sir. फ्यूचर में दिया होता तो that would have been much better. That's why I asked you for this. Okay, sir. Okay, students, can I erase this? Yes, sir. Okay. प्लीज ये सारे फॉर्मूलाज मैंने शायद लास्ट लेक्चर में लिखे हुए थे, तो प्लीज ये सारे फॉर्मूलाज जो नए नए फॉर्मूलाज वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते जाओ. मैंने लास्ट टाइम आई गिवन यू फॉर्मूलाज, स्टूडेंट सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे ना हम लोगों ने. तो अगर तुमने वो फॉर्मूलाज एक लिस्ट पे लिखा होगा तो वहाँ पे और स्पेस छोड़ो और वहाँ पे जो नए फॉर्मूलाज आ रहे हैं ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ओवर देयर. एक बना लो उसका फॉर्मूलाज का लिस्ट, यानी दैट विल बी रियली हेल्पफुल व्हेन यू एक्चुअली सॉल्विंग द और लर्निंग द चैप्टर. Or when you're solving problems, that will be good for you. This is one-time effort. Okay. Let me give you one more question, students. I don't know about it, whether I did this question or not. Okay, students. Question 3, students. The potential difference of 5,000 volt. Just let me know about students. ये क्या हमने किया है कि नहीं किया? A potential difference of 5,000 volt is applied between two parallel plates. किया हुआ 5 centimeter apart. Millikan oil drop experiment के हिसाब से है. क्या हम लोगों ने किया है ये? Yes, sir. क्या पूछा था मैंने? किया हुआ हम लोगों ने ये? Yes, Find sir. the mass. Find the mass of the oil drop Yes, sir. to keep in equilibrium. Fine. So downward forces are balanced by the upward force. Okay. Fine, students. Now we move further, students. Now we go for potential at a point. In an electric field due to a unit positive source charge. Listen carefully, students. Potential. We are trying to find a formula for potential at a point in an electric field due to a unit positive source charge. हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी हाउ टू गो अबाउट विद दिस. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. यानी हमने देखो, अगर तुम देखोगे पूरा तो हमने Q इज इक्वल टू एनी, हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला दिया. ओके. फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर रिलेटेड प्रॉब्लम चले गए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डाइपोल का फॉर्मूला दिया. ओके. डाइपोल क्या होता है उसका, फिर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला दिया, फिर टॉर्क का फॉर्मूला दिया, फिर वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, है ना, वो भी मैंने बोला था. वर्क डन कुछ याद आ रहा है? PE cos of theta 1 minus theta 2. कुछ याद आ रहा है? PE cos of theta 1 minus cos of theta 2. Cos of theta 1 is initial position, theta 2 is final position. जूल में स्टूडेंट्स ये किया है ना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स. ओ हेलो, हाँ या ना बोलो. ओके, Razafar is saying it yes. Razafar, तुम आंसर दो, थोड़ा सा लाउड करके अनम्यूट करके आंसर दो और थोड़ा जोर से बोलो, so that the other people also could hear it. Otherwise it seems like that the entire class is sleeping. Okay, so now we are trying to speak about फिर हम लोग ने E along the axis क्या, E along the equator क्या, दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दिया.
E axial is equal to twice E equatorial we consider. Okay. अभी हम निकालेंगे potential at a point in electric field due to a unit positive charge, जिसको मैं बोलूंगा सोर्स चार्ज. तुम्हारी बुक्स में देखोगे तो ये वर्ड सोर्स नहीं लिखा होगा. ओके. हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब यानी इट इज सिंपली कंसीडर V. Now, when I say potential, that means what kind of a quantity is this? Then the answer will be it's a scalar quantity. Students, ये है एक scalar है. जब तक हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर था. फोर्स क्या था? वेक्टर था. वेक्टर्स के लिए हमने कभी भी नेचर नहीं यूज किया था स्टूडेंट्स. ध्यान से सुना. नेचर ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज पॉजिटिव या चार्ज नेगेटिव कहाँ पे भी हमने -5 कॉलम या -10 कॉलम कभी यूज नहीं किया है. सारे चार्जेस को हम लोग ने पॉजिटिव में ही लिया है. सो व्हाट इफ इट्स नेगेटिव? तो वहां पे हम नेचर नहीं कंसीडर करते, लेकिन स्केलर्स कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड. यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, फॉर स्केलर क्वांटिटीज डू कंसिडर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. एनी लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाट आर डूइंग इट, व्हेदर यू आर डूइंग फॉर सिंपल HSC or you're doing for your NEET or JEE or advanced, नेचर को ध्यान में रखना. Students, is my voice lagging? Students, is my voice lagging? No, sir. Tanya saying it no. Kazafar is saying it no. They're posting it. Please, one of you will be loud and unmute yourself and say no or yes, whatever it is. So, is my No, voice sir. lagging? No, sir. Okay, it's not lagging. तेज शायद तो या तो हो सके तो बाहर जाके वापस आ, मैं तेरे को ले लूंगा अंदर. Okay, I'll take you back. Just try to look at your Wi-Fi. Okay. Please, ध्यान से सुनना. Whenever I speak about potential we consider, so please do consider the source. Okay. Sorry, do consider the nature of electric charge. Nature of electric charge का मतलब positive और negative consider करना जरूरी है. Now let us go for potential at a point. How do you go about? ध्यान से सुनना students. अभी मैंने क्या लिया? मैंने सपोज अगर मैंने चार्ज प्लस Q लिया है, ओके, और वो है पॉइंट O पे. अगर ये चार्ज प्लस Q है और ये मेरा सोर्स है स्टूडेंट्स, जिसका मैग्नीट्यूड इज लार्ज इनफ, दिस चार्ज विल हैव अ सर्टेन रीजन अराउंड इट. इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? I'll call this particular region as electric field. The region around a unit positive charge, where any other stray charge comes into its vicinity, either will have an electrostatic force of attraction or electrostatic force of repulsion. Such a region around a unit positive charge is called electric field. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये हाइपोथेटिकल है स्टूडेंट. हाइपोथेटिकल मतलब दिखाई नहीं दे रहा है. एक टाइप का हाइपोथेसिस है. ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें फील हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है. यानी अगर सपोज कोई चार्ज है स्मॉल क्यू, जिसको मैंने इंफिनिटी पे रखा है, अगर वो स्मॉल क्यू को मैं पहले लेके आ रहा हूँ एट पॉइंट ए, एग्रीड, और अगर ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है तो क्या होगा? इसको रिपल्शन मिलेगा. अगर ये नेगेटिव है तो उसको अट्रैक्शन मिलेगा. दैट्स व्हाट क्यू फील्ड में आ गया. अभी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट अ पॉइंट. यानी पोटेंशियल, आई वांट टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए. पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. किसका? ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज. मेरा ये जो मेरा छोटा सा चार्ज है ना, वो पहले कहाँ पे? इंफिनिटी पे है. इंफिनिटी से मैं पॉइंट ए पे लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट्स. आई एम ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए स्टूडेंट्स. एग्रीड? Okay, Tej, fine. I'm getting the charge from infinity to point A, students. So we are trying to find out potential at point A we consider. Is that clear? Absolutely correct, Gazafar. Potential at a point we consider is a work done. The answer is no. Potential at a point we consider is a work done. Work done to move what? The work done to move this particular unit charge positive, छोटा charge. Okay, छोटा charge, positive charge. कहाँ से कहाँ? From infinity to point A. ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ? Potential at a point is defined as the work done to move a unit positive charge, छोटा सा charge. कहाँ से? From infinity to point A. Agreed?
अभी सपोज मैंने सिंपल पूछा स्टूडेंट्स व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, तुम क्या बोलेगा सर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एग्रीड, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये कौन सा फोर्स है सर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है सर 1/4πε0 सोर्स, सोर्स इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा लेट अस से दिस इज द डिस्टेंस आई कंसीडर, okay, so that's r square into r. Students, listen carefully. What's the formula for work? Very easy way to find out formula for work. Work done is equal to F into R. So it's 1/4πε0 K Q small q source effect upon distance square we consider into R. एक R cancel हो जाएगा. Am I getting the formula for work done? Yes. So what's the formula for work done? Work done to move a charge from infinity to point A. Students, तो कैसे लिखोगे? तो work done का formula होगा 1/4πε0 K. सर यहाँ पे आपका होगा सोर्स, ये कैपिटल तो आएगा, चार्ज क्यू हाँ सर वो भी आएगा, ध्यान से देखना सर ये पॉजिटिव है, हाँ ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, हाँ ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे नेचर आपने बोला था कंसीडर करने के लिए, हेलो नेचर बोला है तो अभी मैं साइंस पॉजिटिव ही रखूंगा। एग्रीड। अपॉन नीचे क्या आ रहा है तो नीचे तो आर आ रहा है क्योंकि आपका यहाँ पे एक आर कैंसिल हो गया, लेकिन डब्ल्यू के नीचे और क्या आ रहा है तो एक स्मॉल क्यू भी आ रहा है, कैन आई से क्यू एंड क्यू विल गेट कैंसिल। So can you give me the formula for potential at a point A to move a charge from infinity to point A? So what's my formula? What's my formula we consider? It's Q upon 4 pi epsilon naught K R A. What does R A stands for? Distance of this particular point from the given charge plus Q. And this is what we call as a scalar. ये scalar quantity है, ये scalar quantity है, इसका unit क्या होगा? Volt. Is this clear to all of you all? Yes, sir. Sir, RA Agreed. All is of you the all. Distance sir, of RA this is particular charge from from the point O. source, no? Yes, from the source. Always. नीचे जो R आता है ना, always वो charge का from the source we are taking it. Agreed. Okay, That's the sir. formula for work done we consider. ये was हमारा formula for work done. Is this clear with everyone? ये बात clear है? अभी मुझे बताओ students. Why did I say there is some work done? क्यों? Reason क्या है? तो तुम तुरंत बोलोगे सर यहाँ पे वर्क डन इसलिए है क्योंकि आपने जो चार्ज लिया है वो पॉजिटिव है, गिवन चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज प्लस क्यू है तो उसका भी एक फील्ड होगा लेकिन उसका कंपैरेटिवली वीक है। जैसे आप चार्ज को, जैसे आप ऐसे सोचो कि मैंने चार्ज को इंडेक्स फिंगर और थंब से पकड़ा है और उस चार्ज को आप इन्फिनिटी पे लेके आ रहे हो, जैसे आपने फील्ड के अंदर लाना शुरू कर दिया तो उसको तो रिपल्शन मिल रहा है। अरे सर ये कंसेप्ट तो एकदम एग्जैक्टली ऐसा हो गया, मैग्नेट की तरह हुआ। उसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि आप एक तरफ आपने एक मैग्नेट रखा है जो बहुत ही पावरफुल है और एक दूसरा आपने एक मैग्नेट लिया, छोटा वाला मैग्नेट है जिसका नॉट आप इसके नजदीक लेके जा रहे हो। ऑफकोर्स पहले ये इंफिनिटी पे था, जैसे जैसे मैं पॉइंट को नजदीक लेके जा रहा हूँ, जैसे जैसे नॉट को नजदीक लेके जाऊंगा, पॉइंट ए फिर पॉइंट बी फिर पॉइंट सी, तो होगा क्या सर उसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, यानी मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। I have to do more work. Yani work is said to be done when the given test charge is positive. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. अगर सपोज मैं नेगेटिव चार्ज लेता तो क्या होता? तो नेगेटिव चार्ज लेता तो फिर वो अगर जैसे आप फील्ड के अंदर आया तो वो तो तुरंत चला जाता, ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है ना। So in that because the field line, the direction of electric field line students is always from where to where? It's always from positive towards negative we consider. ये है direction of electric field line for a source. इसके लिए source charge के लिए students. It's always directed from positive. Agreed. Electric field is always directed from positive we consider for a source charge. So ये हुआ था हमारा potential का point. So can I say now I've got the formula for potential at point A, so I got VA. Agreed. अभी मैं क्या कर रहा हूँ? Now I'm taking this particular charge from infinity students
to a point B. So what is this distance I'll consider? I can say what exactly consider. So this distance consider RB. Agreed? Agreed, students? I'll consider RB in that case. The distance of the charge. Agreed, students? Yes, sir. Okay. Take in this manner that the charge is over here. So this is the hypotenuse over here. Okay, I'm taking the charge from here, bringing it over here, and this charge I'm bringing it over here. Okay, this is potential at point A and potential. And dances in the students, work done is independent of the path. ये तुम लोगों ने work energy theory में पढ़ा होगा. Work done is independent of the path. यानी तुम infinity से point A की तरफ लेके जा रहा हो तो ऐसे लेके जा सकते हो, या ऐसे 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 भी लेके जा सकते हो, या ऐसे भी लेके जा सकते हो, या ऐसे भी लेके जा सकते हो, या ऐसे ले जा सकते हो. So work done to move a charge from infinite point is independent of the path. It just depends on the initial position and final position. Clear हुआ ये? Agreed? तो उनके बीच में जो distance होगा that has to be clear out. अभी देखो, अगर मैं B पे ले रहा हूँ तो स्टूडेंट थोड़ा बहुत potential at point B, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सर पोटेंशियल एट पॉइंट बी का फॉर्मूला सर अभी मैं डायरेक्टली यूज कर दूंगा. फॉर्मूला क्या होगा सर? सोर्स तो होगा, नीचे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर अ मीडियम तो आएगा, और डिस्टेंस क्या होगा सर? आर बी होगा. एग्रीड? अभी मुझे बताओ ये होगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी. अभी मुझे बताओ कहाँ पे तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ा? पोटेंशियल एट पॉइंट ई ज्यादा काम करना पड़ा या पोटेंशियल एट पॉइंट बी तुम्हें ज्यादा काम किया? थोड़ा एक्चुअली कंसिडर. व्हेट इज द वर्क डन मोर? व्हाट इज द वर्क डन मोर स्टूडेंट्स? B. B. So can I say work done to move a charge? The answer is no. Work done to move a charge from infinity to B is greater than the work done to move the same charge from infinity to A. Therefore, can I say potential at point B is greater than potential at point A? Therefore, can I say this accounts for difference in potential, and that is BB minus BA. यानी ये किसका फॉर्मूला आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया. तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला C Coulomb's constant Q by R. C Q by R. And this is due to what? Due to a unit positive charge. Potential at a point due to a unit positive charge, single positive charge. नीचे R ही आएगा, R स्क्वायर नहीं आएगा, R क्यूब नहीं आएगा. यानी यहाँ पे बहुत ध्यान देना है नीचे डिनोमिनेटर के अंदर कहाँ पे R आ रहा है, कहाँ पे R स्क्वायर आ रहा है, कहाँ पे R क्यूब आ रहा है. R क्यूब तुमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आ गया, सॉरी एक्सिस के ऊपर आया था, E along the axis और E along the equator. वैसे जनरली E का फॉर्मूला होगा तो नीचे R स्क्वायर आ रहा है, F का फॉर्मूला होगा तो नीचे R स्क्वायर आ रहा है. अभी V देखोगे तो सिर्फ नीचे R आ रहा है. यानी ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स हमेशा लूज करते हैं. दे ट्राई टू लूज ग्रिप ऑन टू दैट. दैट मीन्स दे डू नॉट रिवाइज फॉर्मूलाज, दे डोंट गो टू द मैथमेटिकल रिलेशंस. तो ये तुम्हारा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर, तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस. यानी उसका मतलब क्या हुआ मालूम है? अगर सपोज मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर फिक्स करूँ, ओके, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये क्या दिखाएगा पॉइंट? यानी compared to A, B is at high potential, A is at low potential. High potential is always assigned with a positive sign. Low potential is always assigned with a negative sign. That's always assumed in that case. अभी बाई चांस सपोज मैंने चार्ज को A से लेके B पे लिया, और बाई चांस मैंने चार्ज को B पे लेने के बाद में छोड़ दिया. B को लेते चार्ज यहाँ पे लिया मैंने, इसको यहाँ पे लिया मैंने, छोड़ दिया, तो क्या होगा? सर ये चार्ज जो होगा ना वो मूव करना शुरू कर देगा. अरे हाँ सर, ये तो मोशन ऑफ चार्ज हुआ. ये मोशन ऑफ चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओ यानी सर मोशन ऑफ चार्ज किसकी वजह से हुआ? मोशन ऑफ चार्ज हुआ है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे क्रिएट हुआ? Because there was some work done to move a charge. The work done to move a charge at point B was greater in comparison to A. So since work done to move a charge to move a charge Q from infinity to B is greater than work done to move the same charge, okay, to move from infinity to point A. So can I say electrostatic potential energy? Electrostatic potential energy at point B is certainly greater than electrostatic potential energy at point A. क्या ये क्लियर हुआ? वर्क एंड एनर्जी कोरिलेटेड. तो यहाँ पे वर्क अगर B पे ज्यादा है तो एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज. एनर्जी, क्योंकि ये जो काम हम कर रहे हैं
वो कहाँ पे चला गया? तो चार्ज के अंदर चला गया और वो स्टोर हो गया। किस फॉर्म में स्टोर हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अरे सर ये तो ये वाला कंसेप्ट हो गया कि आप अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हो, आप अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो ये ग्राउंड जीरो लेवल है। यहाँ से अगर आपने सीढ़ियाँ चलना शुरू कर दिया तो क्या होगा? आप एक पोजीशन पे पहुंच गए। तो ये हुआ पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये हुआ पोटेंशियल एट पॉइंट ए। Potential at point B is greater than potential at point A. Work has to be done when you move from low potential to high potential in this case. तो अगर work is said to be done, ये जो काम हो रहा है that gets stored in the body, अगर ये बंदा यहाँ पे चला जाएगा तो work gets stored in the body in the form of which energy? यहाँ पे क्या होगा? Gravitational potential energy. ये कौन सा है? Electrostatic potential energy. So this is electrostatic potential energy. यानी सर आप क्या बोलना चाहते हो? Potential occurs in several forms. अरे यार अभी पता चला। 9th में 10th में हमारे टीचर चिल्ला चिल्ला के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टिंग्विश करा रहे थे। तभी कंसिस्टेंटली वो बोल रहे थे काइनेटिक एनर्जी अकर्स ओनली इन वन फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी अकर्स ओनली इन वन फॉर्म। अरे ऑफ कोर्स मोशन में होगा तो एक ही फॉर्म होगा, ट्रांसलेशन होगा, इसका अलग अलग वेज होगा, रोटेशनल हो सकता है, ऑसिलेटरी भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अकर्स इन सेवरल फॉर्म्स। ऑफ कोर्स अगर मैंने पानी को रख दिया डैम के अंदर तो वो कौन सा होगा? हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर कोई इंसान को एक हाइट पे खड़ा कर दिया, हिल पे खड़ा दिया तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, या कोई स्टोन को लगा दो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैग्नेटिज्म में जाओगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इन सेवरल फॉर्म्स। एब्सोल्युटली करेक्ट वी कंसीडर। तो यहाँ पे तुम्हारा वर्क डन इज मोर टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी as compared to work done to move from infinity to point A. We consider the potential energy at point B is greater than potential energy at point A. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Now, if I happen to ask you, can you give me the formula for difference in potential? हाँ सर, difference in potential क्या आएगा? यानी VV minus VA करना है। सर VV का फॉर्मूला आपके सामने है, VA का फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है। सिंपल हो गया सर, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो तो Q अपॉन क्या आ जाएगा? 4 pi epsilon naught K फॉर अ मीडियम बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? सर 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA, और यहाँ से किस में होगा? वोल्ट। इज दिस क्लियर? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? व्हाई नॉट? वर्क डन का फॉर्मूला हमें मिल सकता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो वर्क डन इज इक्वल V इनटू Q। V इनटू यानी होगा क्या? सिर्फ इस तुम्हारा इफेक्ट वाला ना वो साथ में आ जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K फॉर अ मीडियम सोर्स इफेक्ट अपॉन व्हाट एग्जैक्टली? हाँ, ये तुम्हारा किस में आंसर होगा? जूल में होगा। एग्रीड। अगर ये फॉर्मूला मुझे डिफरेंस इन वर्क में चाहिए तो क्या होगा? फिर ये तो फॉर्मूला आएगा, क्यू भी बाहर आएगा, ब्रैकेट में 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। एग्रीड। कैन आई फाइंड द डिफरेंस इन द वर्क डन? यस, वर्क डन to move from B is greater than work done to move at A, and that is change in electrostatic potential energy. Agreed? Is this clear with all of you all? Yes, sir. Okay. Can I erase this part? Okay. These are the formulas ध्यान में रखना, students don't forget these formulas.
Okay, students, let's see if we can get this answer for this. Okay, please pay attention for this question. Two charges, 5 microcoulomb and minus 4 microcoulomb. ठीक है, एक चार्ज दिया है प्लस 5 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज दिया है ये Q1 और ये Q2, दोनों का वैल्यू अलग है. Okay, this is minus 4 microcoulomb, यानी Q2 is given to you and Q1 is given to you. That's I'm putting it in terms of this. Okay, Q1 is plus microcoulomb, Q2 is minus 4 microcoulomb. Are kept 5 meters apart at point A and B. This is point A and this is point B. अब ये देखो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, A and B respectively. क्वेश्चन क्या पूछा है? How much work will have to be done? So work to be done to move a charge, to move the charge at A through a distance of 5 meter, further away from point B. From point B along the line BA. ये लाइन हो गया एक्सटेंडेड. ओके, वापस मैं क्वेश्चन पूछ रहा स्टूडेंट्स. What is the question, students? Two charges, Q1 and Q2, one to be plus 5 microcoulomb, other one is minus 5 microcoulomb, are placed at point A and B 5 meters apart from each other. Question asks is work to be done. Work to be done to move the charge at point A. Work done to move the charge at point A through a distance of 5 meter, further away from B. If I say I want to move a distance of 5 meter further away from B along line BA, I wanted to find out work done. Is the question clear with all of you all? क्या ये question clear हुआ students? अरे हाँ या ना तो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. The strength was above 65, 66, and now 10 students have dropped as it comes tends to end of the lectures. Very good. Please try to get the answer. Shravani, yes, नहीं Shravani, answer दो Shravani. Forget about the rest of the students. जिसको जाना है जाने दो, doesn't matter. Everybody knows how to use the parents' hard-earned money. Everybody knows it. तुम लेट आए श्रवण, है ना? तुम लेट एंट्री मार रहे हो और बाकी सब कोई जल्दी जा रहा है. श्रवण अभी आंसर तो कमन पास वेटिंग फॉर यू टू आंसर. नहीं कुंज गलत. कुंज गलत थी. क्या कर रहा है कुंज? कुंज क्यों ऐसा तो एकदम रैंडम चला गया आंसर में. थोड़ा ध्यान से सोचना कुंज, क्या पूछा गया है. काम तो करेगा है ना, क्योंकि तू पॉजिटिव चार्ज दूर लेके जा रहा है, नेगेटिव चार्ज उसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो तू काम कर रहा है. सॉल्व कर फिर बराबर कुंज.
यस कोई सॉल्व कर उसको बराबर। पहला कितना डिस्टेंस है, बाद में तू लेके जाएगा तो कितना डिस्टेंस होगा, कहाँ पे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो डेल्टा में किसको पहले लेगा, किस में से किसको सबट्रैक्ट करेगा, वो ध्यान से कर। अभी सिखाया कंसेप्ट। Yes, anybody? Come on, Tanya. Yes, sir, trying. Shavani, Tanya, Tej, Kazafar, Chirag. Answer. Friends, can I solve? You want me to solve it for you all? Shall I solve it for you all? Yes, sir. क्यों, क्या हुआ ऋषि, क्या 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 फील हो रहा है स्टूडेंट्स? अभी ये कौन सा चार्ज है नेगेटिव, ये कौन सा चार्ज है पॉजिटिव? तुमने पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ लिया स्टूडेंट्स, तो कहने से यहाँ पे होगा तो ऑफकोर्स इट हैज इट्स ओन पोटेंशियल। लेट मी कंसीडर U1। Chirag is also getting the same magnitude. I need to check it क्योंकि आंसर यहाँ पे कुछ अलग दिया हुआ है। Let me check it. Please students, देखो potential at point A we consider A at point A is U1. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. फिर अगर मैं Yes, suppose sir. अगर मैं 5 मीटर, हाँ बोलो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट C लेता हूँ स्टूडेंट्स और यहाँ पे बोलूँगा तो पोटेंशियल एट पॉइंट दिस इज 2, तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स वेयर इज पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, इज इट एट 1 और एट 2? मोर वर्क इज डन। 1. So as the distance increases, what happens in that case? The potential energy, what happens? It goes on decreasing. Yes, sir. यानी जैसे तुम यहाँ पे लेके आओ तो अट्रैक्ट होगा, अगर यहाँ पे लेके जाओ तो आई एम ट्राइंग टू डू सम वर्क इज टू बी डन विद इन द फील्ड वी कंसीडर। Okay, so where is the potential energy more in that case? At point 1 or at point 2? That's my question to you all. तो अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, तो अगर तुम देखोगे तो there are 3 points. आप फिल्ड करेंगे तो 3 पॉइंट्स आ रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा C ले लिया मैंने। एग्रीड? ये डिस्टेंस कितना होगा सर? ये होगा 10 मीटर। ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 मीटर। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स? व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी के नहीं दिया तो इसको 1 ले लेना। एग्रीड? सोर्स आएगा, हाँ सर आएगा। इफेक्ट होगा, हाँ सर वो भी होगा। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, नाउ इफ इन केस इफ आई हैपन टू कंसीडर डिस्टेंस आर आ जाएगा। अभी मुझे बताओ अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी भी कंसीडर। तो अगर सपोज मैंने इसमें से इसको सेपरेट कर दिया, डिफरेंस इज ऑलवेज कंसीडर फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेरा आंसर किसमें होगा? नेगेटिव ही आएगा।
नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियल Yes, एनर्जी इज sir. डिक्रीजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन ये दिखाएगा कोई डिक्रीज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम देखो चलो, चेंज का मतलब क्या, ये क्या हुआ चेंज, चेंज का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तुम ये ले लो, चलो यूसी ले लो, ये ले लो यू है, एग्रीड एवरीवन, इससे सेटिस्फाइड हो एवरीवन। चेंज का मतलब क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन के लिए तो क्या करोगे सर, कॉमन तो ये आएगा, सोर्स वो भी आएगा, इफेक्ट वो भी आ रहा है, क्योंकि सोर्स और इफेक्ट, सोर्स अभी कौन सा होगा, इफेक्ट कौन सा होगा, किसको तुम मूव कर रहे हो, Q2 और Q1 में सोर्स कौन सा होगा और इफेक्ट कौन सा होगा स्टूडेंट्स, इसको मूव कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारा Q2 सोर्स is हो जाएगा, source. ये तुम्हारा इफेक्ट हो जाएगा, एग्रीड। अपॉन क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ब्रैकेट व्हाट एग्जैक्टली सर, 1 अपॉन RC माइनस 1 अपॉन RA, डजंट मैटर। जब भी तुम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लेते हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नेचर ऑफ चार्ज देखना जरूरी है, इसका चार्ज कितना है, सपोज अगर मैं इसको लेता हूँ Q और इसको लेता हूँ स्मॉल q, इसका चार्ज कितना है सर, -4, इसका कितना है 5, ध्यान से देखना माइक्रो कूलम, तो कैन आई पुट दिस एज -4 into 10⁻⁻6 into 5 into 10⁻⁻6, 1 upon 4 pi epsilon 0 is 9 into 10⁻⁹, 1 upon RC is 1 upon 10 we consider, agreed, minus 1 upon RA we consider, that means ये तुम्हारा RA होगा, ये तुम्हारा RC हो जाएगा, that is 1 upon 5, agreed। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, agreed। Yes, sir. 9 5 are 45, 45 into 4, 5 4 are 20, 4 4 are 16 17 18, तो 180 आ गया मेरा, into what, 6 and 6 12, 9 10 11 12 11 10 raised to -3 आ गया, इसको सॉल्व करो तो ये 5 होगा, -10 अपॉन 50, क्या ये क्लियर हुआ, अभी देखो 5 - 10 यानी कितना आंसर होगा सर, अपॉन 50 है तो 18 अपॉन 5 इंटू 10 रेज टू -3 इंटू ये क्या होगा सर, ये माइनस साइन है, ये आंसर क्या होगा, जैसे 50 मैंने बाहर ले लिया तो कैंसिल हो गया 0, ये क्या होगा -5, ये माइनस माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये आंसर इज करेक्ट स्टूडेंट्स, आंसर given in the textbook is incorrect and Kunj had given the answer earlier, Kunj was the one who gave the answer earlier, एक मिनट कुंज, वेरी गुड कुंज, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर देख रहा था, नहीं कुंज तेरा पावर बराबर नहीं है, कुंज पावर बराबर नहीं है, एंड हाँ बाद में उससे पावर सही डाला है, बराबर है, पावर लेटर एंड चिराग वाज करेक्ट। अभी देखो 5 and 5 कैंसिल हो गया, माइनस में माइनस प्लस हो गया, तो व्हाट्स माय आंसर, तो माय आंसर इज 18 into 10 raised to -3 और 1.8, is that clear, into 10 upon 10 we consider, is that clear, तो 10 raised to -2 होगा स्टूडेंट्स, एग्रीगेट, ये जो सॉरी अपॉन 10 अगर मैं लेता हूँ करके तो इंटू 10 से -2 होगा, बस सिर्फ अपॉन 10 कर लो ना, तो 18 अपॉन 10 क्या होगा 1.8, तो तुम्हारा आंसर 18 into 10 to -3 जूल। इज दिस क्लियर विद ऑल ऑफ यू ऑल स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ सबको, Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, शैल आई इरेज दिस नाउ, हाउ टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, हम लोग ने जो सीखा स्टूडेंट उसी के ऊपर प्रॉब्लम था, और वो बात है कि नेचर को लेना जरूरी है स्टूडेंट्स, ओके now students we go for potential at a point, due to system of electric charge, likewise electrostatic
potential energy at a point due to system of electric charges. देखो स्टूडेंट्स, पहले जब हम लोग क्या था डेरिवेशन, वो क्या था, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बताएं, यानी एक से ज्यादा चार्ज। गेटिंग इट? we are trying to go for that. Okay, so what is the potential at a point if I have to consider due to a given charge we consider, and then I'll take some other charge and then I'll go for the third charge. यानी तुम ये सोचो कि ये चार्ज प्लस क्यू है एट अ पॉइंट ओ, इसका ये रीजन है। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, पहले मैंने एक Q1 लिया, सोचो कि Q1 पहले इंफिनिटी पे है। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट? तो फॉर्मूला क्या होगा, C इज कूलम्ब कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? तो ये क्या होगा, कैपिटल की सोर्स तो आएगा अपॉन स्मॉल आर आ जाएगा और ये आंसर वोल्ट में आएगा। अभी ध्यान से देखना, अगर मैंने पूछा व्हाट हैपेंस टू द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट इंफिनिटी, व्हाट इज आर एट इंफिनिटी? क्या होगा सर, एट इंफिनिटी आर इज इंफिनिटी, सो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। ये हमेशा ध्यान में रखना, potential of a charge at infinity is always 0, therefore electrostatic potential energy of a charge also at infinity will be equal to 0। क्यों? क्योंकि electrostatic potential energy का भी फॉर्मूला क्या है, what is the formula for electrostatic potential energy we consider is, तो ये क्या होगा, C capital Q small q upon R and this answer will be in joule। ये क्लियर हुआ सबको? Students, are you getting this very clearly? Potential at infinity and potential energy at infinity we consider, so simply we take it as equal to 0। अभी ये चार्ज इंफिनिटी पे है, मैं कहाँ पे लिया स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग अ चार्ज इनिशियली एट पॉइंट ए, तो मेरा भी चार्ज Q1 आया है एंड आई एम टेकिंग इट एट पॉइंट 1। सो द डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम दिस BR1। नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल? द आंसर इज नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एट 1 ड्यू टू दिस चार्ज? तो क्या फॉर्मूला होगा, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला? What's the formula? C Q upon R we consider. Agreed source. Are you getting it, students? Effect तो लोगे नहीं। Yes, sir. अगर सपोज मैंने अभी दूसरा चार्ज लिया, ध्यान से देखना, अभी मैं सपोज मैं दूसरा चार्ज ले रहा हूँ Q2, आई एम टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी एंड ट्राइंग टू टेक इट विद इन द फील्ड ऑफ सम अदर चार्ज एट पॉइंट 2, और ये जो डिस्टेंस है R2 है। तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट 2 ड्यू टू द चार्ज? तो क्या बोलोगे तुम? क्या होगा? सेम R2 डिस्टेंस आएगा। अगर ये पॉजिटिव है, आई गेटिंग इट, दिस पार्ट आई कंसीडर एज पॉजिटिव, दिस आल्सो आई टेक इट एज पॉजिटिव, सो ऑफ कोर्स माय आंसर इज इन पॉजिटिव। एग्रीड? अगर सपोज इफ आई टेक सम अदर चार्ज इन दिस केस, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ चार्ज Q3 व्हिच इज नेगेटिव, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, R3 आई कंसीडर एट पॉइंट 3 आई कंसीडर। सो व्हाट इज द नेट पोटेंशियल? व्हाट इज द नेट पोटेंशियल वी कंसीडर? ड्यू टू वी कंसीडर 1, 2 and 3 वी कंसीडर। Are you getting it? So potential I can consider for a given charge at point 1, at point 2, and at point 3. We can simply go for what? Addition of all the potentials. Potential due to 1, potential due to 2, potential due to 3. ये तुम्हारा होगा scalar part. Because we can add potentials. And what's the formula for potential? 1 upon 4 pi. 1 upon 4 pi epsilon naught K. Agreed? Q by R. क्या ये clear हुआ सबको? Is this clear with everyone? Yes, sir. Yes, sir. All of Yes, you are, sir. all those who are within the lectures, is that clear? Yes, लेकिन sir. अगर स्टूडेंट्स मैंने पूछा पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? ध्यान से देखना। तो बोलेगा सर पहले आपने Q1 लिया था, एवरीबॉडी लिसनिंग केयरफुली, तो सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q, तो सर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का आंसर होगा, प्लीज लिसन केयरफुली, तो उसको मैं U1 लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू Q। ध्यान से देखना, लेकिन जैसे मैंने सेकंड चार्ज डाल दिया,
तो क्या होगा? तो बोलेगा सर सेकेंड चार्ज था ना, तो ये इसके रीजन में भी है और ये इसके रीजन में भी आ गया है। अरे सर तो ये होगा potential for charge 2 due to plus q and potential of charge 2 due to 1 also। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? r12। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? अभी देखो थर्ड चार्ज ले लिया, थर्ड चार्ज लिया, तो उसको तुम कैसे करोगे? तुम बोलोगे सर उसको आप करोगे एक तो पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स के हिसाब से, यानी मेरा U3 तो आएगा, प्लस पोटेंशियल ऑफ दिस 3 ड्यू टू 1, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? R13। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 and 1 वी कंसीडर। और फिर इट्स कमिंग इन द विसिनिटी ऑफ दिस आल्सो, ये डिस्टेंस होगा 2 and 3। तो कहना है potential energy of 3 with respect to 2। What is the net potential energy? What is the net electrostatic potential energy? सबका एडिशन समझ में आ रहा है? यानी देखो स्टूडेंट्स कितने चार्जेस है? 4 है, एक सोर्स और 3 इफेक्ट है। पहले Q1 को लेके आए, फिर Q2 को लेके आए और फिर Q3 को लेके आए, तो टोटल चार्ज कितना है? 4। See the amount of potential energy 1 2 3 4 5 6, यानी there is potential energy of 1 with respect to Q। सेकंड केस में potential energy of Q with respect to capital Q and potential energy of Q2 with respect to Q1। फिर तुमने थर्ड चार्ज ले लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3 with respect to capital Q, Q3 with respect to Q1 and Q3 with respect to Q2। And is the electrostatic potential energy a scalar quantity? Yes, it can be added or subtracted। What's the formula for potential energy? तो सारों में क्या है? कैपिटल Q तो कॉमन आएगा, सब में एक एक Q तो आई है। So now if I happen to go for it, let me remove the constant part of it। चलो मैं constant को निकाल देता हूँ। See, U1 के लिए क्या होगा? What's the formula for U1 के लिए? अगर तुम U1 के लिए तो कहते हैं this is Q1 upon distance R1 होगा। वेरी ट्रू, Pk पॉजिटिव है। U2 के हिसाब से होगा सर, ये भी पॉजिटिव है सर, तो ये होगा Q। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, Q2। अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है तो आस्क मी अगेन, डोंट मूव फर्दर अहेड, डोंट टेक इट ब्लाइंडली आल्सो। इज दैट क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू 2 तो अपॉन क्या होगा? R2 प्लस इसका इसके साथ में भी होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये बन जाएगा सोर्स, क्योंकि आपने इसको लेके आया तो ये सोर्स बन जाएगा, इस पे इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे होगा आपका Q1 Q2 हो जाएगा अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? R12। फिर 3 का आया, 3 के लिए क्या होगा सर? ये तो सोर्स है ही, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव माइनस Q3 अपॉन डिस्टेंस क्या होगा? R3। एग्रीड? प्लस U31 भी कंसिडर, तो ये सोर्स था तुम्हारा, तो Q1 माइनस Q3 अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? R13। एग्रीड? R21 position shown by 2 where is 1, position shown by 3 where it is 1। Agreed? Likewise, if I happen to go for this, तो ये क्या होगा? Q2 minus Q3 upon 3। आ गया 1 2 3 4 5 6 all answers। 2 3 negative और 3 positive। Now can you solve and get the answer for this? And this answer will be in June। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Students, is this clear with everyone? That's why when they solve problems onto potential energy, many students try to get it wrong because they go haywire. And whenever some questions or problems have been asked, take your time. Shanti se usko read karo. Think, try to think what is the source, what is the effect, who is coming into the field of whom, कौन किसके फील्ड में आ रहा है, किसका इफेक्ट किस पे हो रहा है, डिस्टेंस कौन बताता है? हमेशा सोर्स भी बताएगा कि डिस्टेंस कहाँ पर है। तो अगर एडिशन या वो डायरेक्ट डिस्टेंस होगी, अगर मैं Q3 और Q1 लेता हूँ तो 1 इज द सोर्स, तो सीधे ये करेक्ट लिखा मेरा, सोर्स 1 बताएगा 3 कहाँ पे है, सोर्स 2 बताएगा 3 कहाँ पे है, सोर्स 1 बताएगा 2 कहाँ पे है। ठीक है, मैंने वेक्टर्स में नहीं लिखा, ये वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, so you can write on 1 2, but this is the correct way, 1 2 1 3 and 2 3। हमेशा डायरेक्शन कौन बताता है? सोर्स बताएगा कि भाई इफेक्ट कहाँ पर।
तुम किसको पूछोगे? सोर्स को पूछोगे किस पे इफेक्ट कर रहे हो, या इफेक्ट के पूछे हुए कि सोर्स कहाँ पे है? सोर्स को पूछोगे कि इफेक्ट कहाँ पे है, तो वो पॉइंट आउट करेगा. I get it? That person is going to point in that direction. Is this clear, students? Yes, Is this sir. clear with all of you all? Okay. Shall I erase this part? Okay. इसी के अंदर एक लास्ट में एक कंसेप्ट डालता हूँ. अभी यहाँ से देखना, यही चीज को थोड़ा सा एक मॉडिफाई करता है. अभी सोचो कि यहाँ पे एक इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड है. एवरीबॉडी से गेट क्लियर? देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो वेदर द चार्ज इज एग्जिस्टिंग और नॉट. मीन्स आई डोंट नो अबाउट द चार्ज, वेदर इट्स नोन और अननोन चार्ज. कोई नोन या अननोन चार्ज है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो चार्ज मुझे दिया नहीं गया है. एग्रीड? नाउ सपोज इफ आई टेक अ चार्ज Q1 और उस Q1 को मैं इंफिनिटी से पॉइंट ए की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो कैन यू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए? क्या फाइंड आउट कर सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए within a given field of a known or unknown charge. लेकिन उसका हमें मैग्नीट्यूड नहीं मालूम. हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, E है, लेकिन चार्ज Q वो पता नहीं है. So can you find out the formula for work done or electrostatic potential energy? Yes. Yes, sir. कैसे? कैसे कर सकते? How do you find out? कैसे निकालोगे? Anybody? My question is that I have a field existing due to a given charge, but the charge is not known to me. So there is a presence of electric field strength, electric field intensity. I'm taking a charge from infinity and bringing it within that particular field at point A. So certainly I am doing some amount of work, and this work done gets stored in this particular charge. अभी charge यहाँ पे है in the form of electrostatic potential energy. मैंने पूछा, can you students give me the formula of electrostatic potential energy at this particular point within the field? Anyone? And it's very easy. अगर तुम्हें previous concept मालूम हो तो. कुछ वही मुझे चाहिए ना. W कैसे फाइंड आउट करेगा? U and W is one and same. W कैसे फाइंड आउट करेगा? कैसे निकालोगे? तो स्टूडेंट्स ये बारे में I wanted to give an answer in the next lecture. Okay, think about that. यहाँ पे तुम्हारे चार्ज क्यों दिया था देखो ना. So it was easy for you to get it. So just putting the formula. So can you please again repeat the question? My question is that there is an electric field intensity existing, okay? And Yes, this sir. electric field intensity, listen here, this electric field intensity cannot be possible unless and until there is a charge. Fair enough? There should be a unit charge. तो ही field होगा, नहीं तो नहीं होगा. Yes, लेकिन sir. वो चार्ज मुझे नहीं पता, मुझे क्यों दिया ही नहीं है. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वहाँ पे. So it's not a known, it can be a known or unknown charge, लेकिन there is some region, there is some field existing. Electric field intensity है. Now, if I take a charge somewhere from infinity and bringing it in that particular field, I am doing some work. My question to you is, can you give me a mathematical relation for electrostatic potential energy due to presence of some stray electric field? Okay, students, so get me the answer in the next lecture. Okay? Okay, students? Yes, sir. Chalo, Yes, we'll wind sir. up the session. Bye, Next sir. lecture will continue. Bye, sir. Next lecture Thank you, will sir. be Bye-bye. Thank you, sir. Bye, Awesome. Thank you, Bye, sir. Bye, sir. sir. Thank you, sir. No, sir.